Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed the exercises of Unit 1 of your English grammar book. And today I'm going to start with Unit 2 of your English grammar book. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page number 8. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 8, as I'll be starting with Unit 2, Alphabetical Order. Now students, I'm sure all of you know the alphabets. If I tell you to speak the alphabets, you'll start with A. अगर मैं आपसे बोलूं बेटा मुझे सारे अल्फाबेट्स बोलिए तो आप A से स्टार्ट करेंगे और किस पे एंड करेंगे? Z पे. So there are total 26 alphabets. First वाला क्या है? A, then comes B, then C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So there are 26 alphabets and अगर हम alphabets बोलते हैं तो हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में बोलते हैं. पहले हम A से स्टार्ट करते हैं, फिर B, ऐसे करते करते लास्ट में X, Y और Z. नाउ अब इस यूनिट में हम सीखेंगे कि वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं. एंड हम ये क्यों सीखेंगे, इससे हमको फायदा क्या होगा? एक्चुअली अब आप क्लास 3 के स्टूडेंट्स हो गए. नाउ यू विल बी यूजिंग डिक्शनरी. डिक्शनरी जानते हो ना? अ डिक्शनरी इज अ वेरी यूजफुल बुक फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज आप कोई भी न्यू वर्ड पढ़ते हो, सुनते हो एंड यू वांट टू नो द मीनिंग. फाइन. सो आप डिक्शनरी को रिफर कर सकते हो. और डिक्शनरी में वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं. सो इन दिस यूनिट we will revise alphabetical order so that you can use a dictionary quickly and efficiently. Fine. Now, our first exercise is on page number 8. Our first exercise is arrange the names of these musical instruments in alphabetical order. Arrange the names of these musical instruments arrange the names of these musical instruments in alphabetical order. Fine. Now अब कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पिक्चर्स दिए हैं? पहला है सितार. फाइन. फर्स्ट इज सितार, देन xylophone, then flute, then piano, guitar and drums. Fine. अब ये यहाँ पे 6 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है. Now we need to arrange them in the alphabetical order. ठीक है. अब इनको हम अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. फाइन. अब यहां पे देखो, सितार एस से स्टार्ट होता है. फाइन. सितार किससे स्टार्ट होता है? एस से. जाइलोफोन एक्स से, फ्लूट एफ से, पियानो
P से गिटार, G से और ड्रम्स D से. अब अगर मैं अल्फाबेट्स में देखूं, A से कोई वर्ड है? नहीं है. B से है? नहीं है. C से है? नो. किससे है? D से. तो इन सब में सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे? D for drums. So we'll write D for drums. अब D के बाद चले तो कौन सा अल्फाबेट आता है? E. E से एक भी नहीं है. F से? Yes, flute is there. So in number second we'll write flute. Now E, F, G. G से कौन सा है? Guitar. So we'll write guitar in number 3. E, F, G. H से कोई है? नहीं है. I, no. J, no. K, no. L, no. M, no. N, no. O, no. P. Yes, P for piano is there. So we write piano in the 4th place. Now, P, after P, Q, no. R, no. S, no. T, yes, S is there. S से सितार है. P, Q, R, S. So we write S for सितार. अब लास्ट में कौन सा बचा? Xylophone. So we write xylophone at the last place. Fine. So we have written these musical instruments as per the alphabetical order. First drums, then flutes, then guitar, then piano, sitar and xylophone. Fine. Now I hope everybody has written, children. So now I'm going to erase exercise 1 and then I'm going to write exercise 2. And exercise 2 is arrange the names of these insects in alphabetical order. Now there are 12 names of insects given. Now we need to arrange them in alphabetical order. Fine. The names of the insects are locust, moth, bee, mosquito, ant, caterpillar, termite, cricket, butterfly, grasshopper, dragonfly and cockroach. Fine. अब सबसे पहले कौन सा इंसेक्ट का नाम लिखेंगे? एंट, बिकॉज एंट स्टार्ट्स विथ ए. तो नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे? एंट. देन नंबर 2, एंट के बाद कौन सा इंसेक्ट हम लिखेंगे? बी और बटरफ्लाई. 2 इंसेक्ट्स हैं एंड बोथ आर स्टार्टिंग विथ बी. अब बेटा ऐसा कोई हो, अब इफ आई राइट बी एंड इफ आई राइट बटरफ्लाई, ठीक है, अब दोनों ही बी से स्टार्ट होते हैं. सो इन सच केसेस हम सेकेंड वाले लेटर को देखेंगे. ई पहले आता है कि यू? ई. सो इन द सेकेंड प्लेस वील राइट बी और थर्ड प्लेस में आएगी बटरफ्लाई. फाइन. जहां पे आपका फर्स्ट लेटर कॉमन हो वहां पे आप सेकेंड वाला देखेंगे और जो पहले अल्फाबेट आता है वो आप लिखेंगे. तो सेकेंड में हमने क्या में बी और थर्ड में बटरफ्लाई. देन नाउ देयर आर 3 insects named with C. caterpillar, cockroach, cricket. अब तीनों ही सी से हैं. तो कैटरपिलर में सी के बाद ए आ रहा है तो हम पहले कैटरपिलर को लिखेंगे. सो वी राइट कैटरपिलर. फाइन.
हम फोर्थ प्लेस में क्या लिखेंगे बेटा? कैटरपिलर. देन फिफ्थ में, नाउ आफ्टर कैटरपिलर हमारे पास दो और है सी से, कॉकरोच एंड क्रिकेट. अब कॉकरोच में सी के बाद ओ आता है और क्रिकेट में आर, तो ओ पहले आता है. सो वील राइट कॉकरोच. फर्स्ट वील राइट कॉकरोच एंड देन वील राइट क्रिकेट. क्रिकेट गेम वाला क्रिकेट नहीं है, जो झिंगूर होता है ना, रात में बहुत बोलता है, उसको क्रिकेट बोलते हैं. फाइन. देन 7th नंबर पे आपका जो इंसेक्ट है दैट इज ड्रैगन फ्लाई. 7th नंबर पे हम कौन सा इंसेक्ट लिखेंगे बेटा? ड्रैगन फ्लाई. देन ड्रैगन फ्लाई के बाद आपका आएगा insect with G, that is grasshopper. Grasshopper. After grasshopper will come locust. 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 Then now there are two insects with M, mosquito and moth. अब मॉस्किटो में एमओ है, मॉथ में भी एमओ है, तो हम थर्ड वाला लेटर देखेंगे. सो एमओ एस है एंड एमओ टी है, तो मॉस्किटो का एस पहले आता है टी से. सो वील राइट मॉस्किटो इन द 10th प्लेस. मॉस्किटो. एंड 11th में हम क्या लिखेंगे? मॉथ. एंड the last one, 12th one is termite. Termite दीमक को बोलते हैं. Fine. Now let's revise. Ant at number 1, second bee, third butterfly, fourth caterpillar, fifth cockroach, sixth cricket, seventh dragonfly, eighth grasshopper, ninth locust, 10th mosquito, 11th moth and 12th termite. Fine. I hope everybody has done, children. So, you need to keep in mind, if the first letters in two words are same, then we need to check the next letter. And if the first two letters are same, जैसे moth और mosquito में MO, first two letters are the same, then we need to check the third letter. यहाँ S है, यहाँ T है, तो S पहले आता है, T बाद में आता है. So, first ant, second bee, third butterfly, fourth caterpillar, fifth cockroach, sixth cricket, seventh dragonfly, 8th grasshopper, 9th locust, 10th mosquito, 11th moth and 12th termite. Now, I hope everyone has written, children. So now I'm going to erase and start with exercise 3. Now I'm going to start with exercise 3. And exercise 3 is fun time activity. Fine. We need to write the names of your 6 classmates in alphabetical order. Fine. क्लास के 6 बच्चों के नाम हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं. फाइन. तो पहले तो हम 6 बच्चों के नाम लिख लेते हैं. फाइन. फिर उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे. फाइन. सो वी स्टार्ट विद द नॉटीएस्ट चाइल्ड, दैट इज मुस्तफा.
तो हमने सबसे पहले किसका लिखा? मुस्तफा, देन रंजना, देन मनीष, देन दिव्यांश, देन अलंकृता, and Meghal. I have written name of 6 students of class 3. Mustafa, Ranjana, Manish, Divyansh, Alankrita and Meghal. Fine. अब इनको हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. फाइन. सो सबसे फर्स्ट, देन सेकेंड, then third, fourth, fifth and sixth. ठीक है. आप देखेंगे इनमें से ए से किसी का नाम आ रहा है अलंकृता, तो हम फर्स्ट में क्या लिखेंगे बेटा? अलंकृता. ए से है. ठीक है. अब ए के बाद फिर कौन सा अल्फाबेट आएगा? अलंकृता के बाद दिव्यांश. सो वी राइट दिव्यांश, देन अलंकृता, दिव्यांश, देन थर्ड में हम किसका नाम लिखेंगे बेटा? थर्ड में ए हो गया, डी हो गया. अब हमको एम से आप देखोगे 3 नेम्स आर देयर, मुस्तफा, मनीष एंड मेघल. एम तो कॉमन है ना? तो आप एम के बाद नेक्स्ट को देखना है. इसमें यू है, इसमें ए है, इसमें ई है, तो हम कौन सा लिखेंगे? ए वाला, मनीष. देन अलंकृता हो गया, दिव्यांश हो गया, मनीष हो गया. अब ए के बाद ई आता है, सो वी राइट मेघल. देन द फिफ्थ वन, अब मेघल भी हो गया. नाउ वी राइट मुस्तफा. आफ्टर मुस्तफा लास्ट में कौन सा बच्चा? रंजना. सो वी राइट रंजना. ये हमने 6 क्लासमेट्स के नाम आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए. फाइन. आई होप एवरीबडी हैज रिटन चिल्ड्रन. सो नाउ I am going to erase this. Fine. And write the next exercise. Now, the next exercise B is, now exercise B is write the names of months. Write the names of months of a year in alphabetical order. फाइन. अब जितने भी टोटल ईयर में 12 मंथ्स हैं, उन 12 मंथ्स को हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. फाइन. सो द फर्स्ट वन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. अब इनमें सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे? विच मंथ स्टार्ट्स विथ ए? सो वी राइट अप्रैल. सबसे पहले कौन सा आएगा? अप्रैल. फिर और कोई मंथ आता है ऐसे? यस, अगस्त.
सेकेंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे बेटा? अगस्त. एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, जितने भी मंथ्स के नेम होते हैं ये सारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं. दैट्स द रीजन ऑलवेज राइट द नेम ऑफ द मंथ्स विद कैपिटल लेटर्स. जितने भी वीकडेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो भी हमेशा आप कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे. सो अप्रैल ए कैपिटल, अगस्त ए कैपिटल. बट आई नो जब when I make the students write letter, आपको मंथ की स्पेलिंग लिखनी होती है तो आपका हाफ मार्क तो स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग में कट जाता है. सो बिसाइड्स द अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको उनकी स्पेलिंग भी आनी चाहिए. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अप्रैल? APRIL अप्रैल. देन व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अगस्त? AUGUST अगस्त. अब ए से कोई आता है? नो. ए से अप्रैल और अगस्त आते हैं, दैट वी हैव रिटन. अब उसके बाद बी से नहीं आता है, सी से नहीं आता है, डी से कोई आता है? यस, डी. राइट. दिसंबर. DECEMBER. दिसंबर. DECEMBER. December. And December's D will be capital. December's D will be capital. Now, अब D के बाद हम कौन सा लिखेंगे? D के बाद we'll write fourth पे February, which starts with F. And February की spelling, I've seen students making mistakes. So please learn the spelling of February. 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 Fine. FEBRUARY. February. Fine. So सबने February की spelling correctly check it once again. Capital FEBRUARY. February. Then after February हम क्या लिखेंगे? कौन सा आएगा? J, है ना? EFG. G से नहीं आता है, H से नहीं आता है, I से नहीं आता है, J से आता है. J से तो जनवरी भी आता है, जुलाई भी आता है और जून भी आता है. अब तीनों J से हैं तो हम किसको देखेंगे? सेकंड वाले को. तो सेकंड में A किसी से आता है? यस, सेकंड में जनवरी में J के बाद A आता है. सो वी राइट जनवरी in the fifth place. JANUARY. जनवरी. और जनवरी का कैपिटल J होगा. फाइन. कैपिटल J ANUARY. Fine. Now, after January, there are 2 more months with J. July and June. अब JU कॉमन है, जुलाई में भी JU है, जून में भी है. अब थर्ड प्लेस में देखेंगे L पहले आता है कि N? L. So we write July. JULY. जुलाई. फाइन. तो अब सेवेंथ में क्या आ जाएगा? जून. JUNE. जून. नाउ अभी हमारे 7 मंथ्स हो गए. अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, फरवरी, जनवरी, जुलाई, जून. अब J के बाद K से कोई मंथ है? नो. L से है? नो. M से? यस. देयर आर 2 months with M, with alphabet M. 2 months, मार्च एंड मई. मार्च में M के बाद A आता है और मई भी M के बाद A आता है. तो हम थर्ड वाला लेटर देखेंगे. मार्च में R आता है A के बाद और मई में Y. तो पहले हम कौन सा लिखेंगे? मार्च. 8th में हम क्या लिखेंगे? मार्च. और हम 9th में क्या लिखेंगे बेटा? मई. फाइन. 9th में हमने क्या लिखा? मई. अब 10th में M के बाद N आता है. N से कोई मंथ आता है? यस, नवंबर. कैपिटल NOVEMBER. नवंबर. फाइन.
अब नवंबर के बाद एन के बाद क्या आता है अल्फाबेट में? ओ से कौन सा मंथ आता है? अक्टूबर. सो वी राइट OCTOBR अक्टूबर. और लास्ट मंथ कौन सा बचा? 12th मंथ, दैट इज सितंबर. सो वी राइट कैपिटल SEPTEMBER. तो हमने पूरे 12 मंथ्स को किस ऑर्डर में लिखा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. स्टूडेंट्स, एंड यू कैन सी सारे मंथ्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, which indicates these are all proper nouns. We always write the name of months with capital letter. Now, besides now you have learned how to write the names of the month in alphabetical order. Besides these, please learn the spelling. है ना? So let's revise. APRIL April, then AGUST August, then DECMBR December, then FEBRUARY February, then JANUARY January, then JULY July, JUNE June, MARCH March, MAY May, NOVEMBR November, and OCTOBR October, and SEPTEMBR September. So now you all can write the names of the months in alphabetical order. Fine. So I hope everybody has written. So now students, I'm going to erase this and write the last exercise. Now, the last exercise is exercise C of fun activity. And this is write the names of any 6 cartoon characters in alphabetical order. अब हम पहले तो 6 कार्टून्स के नाम लिख लेते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स के. फाइन. टॉम, देन जेरी, 2 हो गया. देन टॉम, जेरी, देन वील राइट Mickey Mouse, then Donald Duck, then Bheem भी छोटा भीम एक कार्टून कैरेक्टर है. एंड we'll write Popeye. So हमने 6 कार्टून कैरेक्टर्स के नाम लिख लिए. Now what we need to do? We need to arrange them in alphabetical order. Fine. तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? इसमें सबसे पहले आएगा भीम. बी से है क्योंकि. फाइन. भीम लिखा. उसके बाद कौन सा आएगा? है ना? ABC से कुछ नहीं है. डी से क्या आ जाएगा? डोनाल्ड डक. फाइन. देन क्या हो गया? भीम हो गया, डोनाल्ड हो गया. देन कम्स जे फॉर जेरी द नॉटी माउस. देन 4th प्लेस पे जेरी भी हो गया. देन कम्स एट द 4th प्लेस मिकी माउस. सो वी राइट मिकी एट द 4th प्लेस. मिकी भी हो गया. अब कौन से बचे? पोपाय एंड टॉम. सो आई राइट पोपाय, पी पहले आता है, इन द 5th प्लेस, एंड
the last one. किस पे आएगा? Tom and the sixth place. So we have written these cartoon characters in the alphabetical order. Fine. I hope everybody has done. First Beam, then Donald, then Jerry, Mickey, Popeye and Tom. And you can see I've written all these names of cartoon characters in capital letters because these are all proper nouns. So with this, children, we have finished Unit 2. I have explained and written all the exercise of Unit 2 and I'm sure all of you must have written along with me. Students, do learn and revise the taught exercises. That's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.